Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Listeners, welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today being Monday, we'll also be taking calls from listeners on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. Listeners, you can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And of course, do prefix Delhi's code 011. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार के हलचल पर एक नज़र के साथ साथ आपके फ़ोन कॉल्स को भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, आप हमें हमारे सीधे नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23314444 और 23421050। हमारा तीसरा नंबर है 23310464। आप हमें फ़ोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी खास कंपनी या शेयर की जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Namaskar Amrish, good evening to Sarabjit also, and very very delightful Eid Mubarak to all the audience. और अब हेडलाइंस के साथ हैं सरबजीत कौर। Domestic markets remain closed due to Eid ul-Fitr holiday, but stock markets in Asia and Europe plunge on tariff fears. Global crude oil prices jump 1% as Trump warns of tariffs on Russian oil buyers and bombing of Iran. And gold prices cross $3,100 per ounce, surging to another all-time high. घरेलू शेयर बाजार आज ईद के चलते बंद रहे, लेकिन एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में अमरीकी शुल्क की आशंका के चलते गिरावट दर्ज की गई। ट्रंप द्वारा रूसी तेल के खरीदारों पर शुल्क लगाने और ईरान पर बमबारी करने की चेतावनी के बीच कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में 1% का उछाल दर्ज किया गया और सोने ने $3,100 प्रति औंस के साथ एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छुआ। And yes, of course, till, the calls come in, we shall be taking up the stories. The domestic markets remained closed today due to the public holiday for Eid ul-Fitr last week. Domestic benchmark indices gained 0.7% on FII's renewed buying interest and rally in banking and financial services on hope of interest rate cut by RBI in the April policy meeting. In the 2024-25 financial year, the Sensex jumped 3,763 points or 5.1%, while the Nifty climbed 1,192 points or 5.3%. We have our first listener from Delhi. Vikram, pose your question, please. Yeah, hi. My question is regarding this war that is looming around Iran and US. Will that have any impact on our Indian stock markets? And if I am a long-term investor in majorly blue chip companies, whether I should remain invested or it's time to have a break and leave the market for a while? Well, Vikram, very interesting question that whether the war which is going on in West Asia, whether that will have any impact on your stock market investments. Well, yes, if that war persists or if that war expands, because, what we heard, you must have heard in the headlines also that we heard some threats coming on Iran for bombing and so from the US.
Well, if that comes true, then definitely the markets. I personally believe, as a stock market expert, that I think stock market cannot be booming when there are missiles flying around. The stock market cannot be relishing that situation. So I think you should be very watchful. Keep track. Nowadays I will tell Sarabjit and Amrish, with their permission, that I've been advising people to, along with keeping watch on the geo-economic situation, they should also keep a watch on the geopolitical situation, because That's right. because suddenly in the last few months or quarters, they have somehow become interrelated. And so a lot of people who do not keep track of geopolitical situation and who are connected with stock markets, I've been advising them, please do keep watch. So Vikram, my advice is, please do keep a watch if you see war aggravating or expanding, because I think new equations are coming up around the world, geopolitically speaking. So you should keep a watch. And as far as your portfolio is concerned, in larger caps or blue chips, I think I would suggest that if you're in profit, maybe you can book your profit and exit and then re-enter when the market goes into another correction. If you are in losses, then I would maybe not advise you to book your losses. Stay invested for a longer term. And somebody was asking me, what is a good time in the stock markets to invest? I said, if you're a long-term investor, any time is a good time, because you keep looking for opportunities here and there, and you can always enter the market every time there is a correction. So that's the advice. If you're in profits, just book your profits, re-enter. If you are in losses, just stay there, don't panic, and wait for the market to revive. That's the advice. और दिल्ली से हमारे श्रोता यशपाल जी लाइन पे हैं. यशपाल, नमस्कार. बताइए क्या पूछना चाहते हैं. थैंक यू. नमस्कार. एंड नमस्कार टू कोहली साहब आल्सो. नमस्कार यशपाल जी. कोहली साहब, मेरा क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग एनपीएस एंड यूपीएस. जी. तो माय सन हु इज 32 year old and daughter in law is 30 years old. जी. Both are working in private sector. जी. So should I advise for NPS or UPS or some equivalent scheme for pension? Thank you. यशपाल जी, बहुत अच्छी स्कीम है, और उतनी ही अच्छी उनकी एज है इस टाइम घुसने की, आप उसमें एंटर करने की. तो इसलिए बिल्कुल एनपीएस तो हम सबको सलाह दे रहे हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपके पास नहीं है. अगर हम सरकारी मुलाजिमों को छोड़ दें, सरकारी एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें जिनको पेंशन वगैरह आती है, अब तो ज़्यादातर सरकारें भी एनपीएस में जा रही है. तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि बिल्कुल एनपीएस उनको करना चाहिए, और 32, 30, 35 साल की उम्र में बिल्कुल एक ठीक समय है एंटर करने का. जब तक वो रिटायर होंगे, 60 के होंगे, तो एक इनकम पोर्टफोलियो उनका बन जाएगा. बिल्कुल मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि, क्योंकि, और उसमें मैं इसलिए आंख बंद करके रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि एनपीएस के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और लॉन्ग टर्म के तो हम जैसे माला जपते रहते हैं सारा दिन के, लॉन्ग टर्म करिए. तो इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल आप अपने सन और डॉटर इन लॉ को आप उनको बोलिए एनपीएस करें, और अपने रिटायरमेंट के टाइम वो आपको भी दुआ देंगे, थोड़ी दुआ हम भी ले लेंगे उनके साथ साथ. जी. Absolutely. Our next caller again from Delhi. योगेश जी, अपना सवाल पूछें. जी नमस्कार आप सभी को. नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं कोहली साहब आपको भी. नमस्कार योगेश. जी, मेरे दो सवाल है सर. मेरे पहला सवाल सभी रिटेल निवेशकों के बिहाफ में ये पूछना चाहूंगा कि जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, तो कैसे एक समझदार निवेशक इसके फायदे ज्यादा उठा सकता है निवेश की बजाय. और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एनपीएस आने के बाद से, क्योंकि एनपीएस की आपने भी अभी तारीफ करी, हम भी इसमें निवेशित हैं, एनपीएस आने के बाद से जो ईपीएस में एक ईपीएस का एक कंपोनेंट होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो उसमें होता है, तो वो एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है, उसको मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है. तो क्या उसको ऑप्ट आउट हटाने का कोई ऑप्शन आने वाला है, आपको लगता है? चलिए योगेश जी, आपका पहला सवाल क्रेडिट कार्ड से संबंधित है. बिल्कुल क्रेडिट कार्ड का बहुत यूज़फुल सवाल है. बहुत लोग क्रेडिट कार्ड में उलझ जाते हैं और उसमें ज़्यादा लोन ले बैठते हैं. हम शायद ज़्यादा लोग जानते हैं इस बात को कि क्रेडिट कार्ड को अगर आप उधार का माध्यम बना देते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत उस पर हैवी फाइनेंस चार्जेस लगते हैं, उस पर फ़ी भी लगती है. तो बेस्ट तरीका क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का है कि आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें एक पेमेंट के माध्यम से, और जब उसकी डेट आती है उससे पहले आप उसको पे कर दें. बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो आप क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट की तरह अवॉइड करें इस्तेमाल करना, क्योंकि कंपनीज आपको एक फ्री पीरियड देती हैं, 15-20 दिन का पीरियड होता है जिसमें आप बाकायदा क्रेडिट ले सकते हैं.
पर लोग उसको लोन का माध्यम बना देते हैं, तो वो लोन बहुत महंगा पड़ता है और वो लोन बहुत आसान होता है। इनफैक्ट जब मैसेज आता है ना आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने का, उसमें लिखा होता है कि आपको इनकरेज किया जाता है मिनिमम बैलेंस पे कर दीजिए और बाकी का भूल जाइए। वेरी अट्रैक्टिव बहुत वो इंड्यूस करने वाली बात होती है। तो मुझे लगता है कि वो उसमें फंसना नहीं चाहिए जब तक कि आपके सामने बहुत बड़ी मजबूरी ना खड़ी हो जाए। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को आप पेमेंट का माध्यम यूज करें तो आप क्रेडिट कार्ड पे आपके पॉइंट्स भी बनते रहेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स, उसका फायदा उठा सकते हैं और शान से आप कार्ड को कैरी भी कर सकते हैं। आजकल तो क्रेडिट कार्ड ये लाउंजेस वगैरह में भी चल जाते हैं, यहाँ आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। दूसरा आपने एनपीएस का पूछा, तो एनपीएस में ये अभी कुछ ऐसा नहीं है प्रावधान के ईपीएस का जो पोर्शन है उसको हटा लिया जाए, वो इनसिग्निफिकेंट है, पर चलने दीजिए, उससे आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। एक कंट्रीब्यूशन तो लमसम जाता ही जाता है, तो अभी ऐसा कोई मुझे सुनने में नहीं आया कि ईपीएस का कंपोनेंट उसमें से हटाया जाएगा। योगेश और so, Amresh, in fact, I think that if we, carry or rather flaunt a credit card, it's indeed very important to be very, very judicious about its use. Oh yes, absolutely. You can lose your credit rating also if you are a defaulter on the credit card. And very important point, Sarabjit, is that it is a very expensive means of credit. जितने भी loans हैं, personal loans हैं, उसमें से सबसे महंगा अगर कोई credit होता है तो credit card का होता है। इसलिए लोन के लिए इस्तेमाल बहुत मजबूरी हो जाए तब करें, वरना मत करें उसको। जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु साहा जी लाइन पे है। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। गुड सर, माय क्वेश्चन इज सर, what about sir unified pension scheme sir and our national pension scheme which is going on, what's different and how to use it better? And another question sir, the future of Indian currency due to the contra with oil price is hiking and other things. Thank you very much. I think about the NPS, I have already spoken to listeners prior to you that National Pension Scheme is very, very, very good. And UPS तो नहीं, OPS होता है, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम हम कहते हैं, जो सरकारी लोगों को अभी तक चलती आ रही थी। कुछ राज्यों ने उसको बदला है, सरकार भी बदलना चाहती है, पर अभी वो जहाँ चल रही है। तो NPS के बारे में तो आपको पता ही है that they invest your funds in designated securities. Some part of it also goes into, there are fund managers, there are trusts who manage these funds, and they go into stock markets, other fixed income securities. So it's very good. I've just already spoken about NPS to two listeners before you. One was Yashpal and one was Yogesh. So you can probably listen to their program on YouTube later. The second is, what is the future of Indian currency? Future of Indian currency is very bright. I mean, a temporary correction on US dollars is being seen. The strength, that was because of the outflow of funds from India to the US over the last 4-5 months. They've been incessant selling in the stock market by FPS, which increased the dollar demand, and against dollar, if you see against other currencies, rupee has not performed all that badly. Right. So the future of our currency, Mr. Saha, is very good. You need not worry. I'm sure rupee will come out as a winner in the long run. Next we have Jitendra from Jaipur. Jitendra जी अपना सवाल पूछें। हाँ, हेलो। हाँ सर, मैं पिछली बार अपना सवाल पूछा था क्रेडिट कार्ड से जी। सर, जवाब भी मिला था, अच्छा मिला था, लेकिन मैं शायद पूरा प्रश्न नहीं पूछ पाया था। मेरे पास होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, और मेरा क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड मेरी नहीं लेना चाह रहा था और लेना भी चाह रहा था। लेना इसलिए चाह रहा था कि इसको शौकिया इस्तेमाल कैसे करते वो देखना था, और नहीं लेना चाह रहा था कि खर्च ज्यादा हो जाता। लेकिन तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप रखिए, 45 दिन तक आपको पॉइंट भी मिलता है। तो अब अल्टीमेटली अप्लाई हो चुका, अब आ रहा है, तो हमको क्या यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रखने से खर्च ज्यादा होता है, तो क्या करना चाहिए सर? शौकिया तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा था। जितेंद्र जी, बड़ा मजेदार सवाल है आपका। तो आपके ऊपर होम लोन भी है, पर्सनल लोन भी है। तो एक अंग्रेजी में जितेंद्र जी कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कि आप एक जाल में फंस जाते हैं उधार के। तो पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहले तो ये देखिए कहीं उधार के जाल में ना फंस जाए। पर आपने कहा आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, ये इस बात का सूचक है कि आप अपने लोन्स की समय पर वापसी कर रहे हैं। पहले तो ये अच्छी बात है। अब जहां तक क्रेडिट कार्ड शौकिया बात है, तो शौकिया तो मैंने अभी आपसे पहले किसी श्रोता ने मेरे से पूछा था, तो शौकिया तो आप रख ही सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो आपने होम लोन, पर्सनल लोन लिया है वहां तक तो ठीक है, पर क्रेडिट कार्ड पर लोन मत लीजिएगा। उसका रीपेमेंट आप उसकी जो डेट होती है उससे पहले कर दीजिए, क्योंकि अगर ये भी एक लोन बन गया
तो फिर आपके लिए सरदर्दी बन जाएगी। मैंने अभी आपसे पहले श्रोता को यही बात दोहराई थी और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इसको उधार मत लीजिएगा, आप उसका डेट से पहले पेमेंट करिए। शौक है, फ्लॉन्ट करना है, जैसे सरबजीत ने भी कहा, फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, जेब में रख के दिखाना चाहते हैं, अरे देखिए मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड है, इस्तेमाल करिए, और भी बड़े काम आ जाता है क्रेडिट कार्ड, और उधार मत चढ़ने दीजिएगा जितेंद्र। लेकिन शरद जी, सिर्फ फ्लॉन्ट करने की बात नहीं, आज के समय में बहुत जगह तो जरूरत भी नहीं, जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि आपको फ्री क्रेडिट मिलता है। हर क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक आपको 15 से 20 दिन का फ्री क्रेडिट देता है, यानी कि आपने पे किया और आप 15-20 दिन बाद पे करते हैं। पर गड़बड़ जब होती है आपको, या तो आप उस लुभावनी SMS में आ जाते हैं जो मिनिमम बैलेंस पे करने को कहता है, या आप भूल जाते हैं। जो ऑटो पेमेंट पे भी आप रख सकते हैं। हाँ, पर सब लोग नहीं रखते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, पर ध्यान रखिएगा बस लोन अगर वो चढ़ गया तो जितेंद्र बहुत महंगा पड़ेगा। आपके सारे लोन्स को वो धूमिल कर देगा। होम लोन, पर्सनल लोन सबसे आगे निकल जाएगा, और आपका क्रेडिट स्कोर जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसको भी बिगाड़ देगा। जी। So moving on to Karnataka, Kumar Nayak. Sir, kindly pose your question. Thank you. Good evening everyone. Good evening. नमस्कार सर, मैं कुमार नायक कर्नाटका के मैसूर से बात कर रहा हूँ जी। तो मुझे मेरा 2 क्वेश्चन है। ये PPF के बारे में, इसमें इन्वेस्ट पब्लिक भी कर सकते हैं क्या, नॉन एम्प्लॉयज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, और इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था। कुमार जी, PPF में बिल्कुल कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलता है। कम से कम आपको 500 रुपये जमा कराना होता है। 15 साल का ये अकाउंट होता है। 7.2 7.1 के आसपास आपको 7 और 7.2 के बीच में अभी इस पे ब्याज मिल रहा है। बहुत ही अच्छा है। इसको हम EEE कैटेगरी में डालते हैं। एग्जेम्प्ट मतलब जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको, अगर आप ओल्ड रिजीम में है टैक्स की, तो आप सेक्शन 80C में उसकी छूट ले सकते हैं। और फिर जो इससे ब्याज आता है पूरी तरह से वो कर मुक्त है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसको निकालेंगे पैसे को तब भी एग्जेम्प्ट है। तो इसको EEE एग्जेम्प्ट कैटेगरी में करते हैं। मुझे लगता है जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसमें PPF अव्वल नंबर पर आता है। तो बिल्कुल आप PPF खुलवा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि हर साल इसमें 500 रुपये कम से कम जमा होना चाहिए। वैसे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें तो अच्छा है। उसको निकालने का तरीका है 5 साल बाद मिनिमम बैलेंस, उसमें एक फॉर्मूला आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाएंगे वो आपको बताएंगे। और 15 साल का अकाउंट है, ज़रूर खुलवाइए। मैं तो PPF के फेवर में हूँ। बहुत सारे लोग मुझे, सरबजीत और अम्बरीश, कहते हैं कि अब तो क्योंकि न्यू रेजीम में लोग आ गए हैं तो you don't need to go for PPF. Why to block your money? But I feel that small saving investment should not solely be done for tax reasons. उसको आप सेविंग्स बहुत अच्छी, मैंने लोगों को करोड़पति बनते देखा है PPF के माध्यम से। उन्होंने अपने करियर में अकाउंट खुलवा दिया था और जब तक वो 51 साल के हुए वहाँ पर करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया ब्याज, क्योंकि उसका मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी PPF में काम करता है। जरूर करिए कुमार जी, जब कर लेंगे तो हमें फोन करके बताइएगा, हम भी खुश हो जाएंगे जी। So saving for the true sense of saving, inculcating it as a habit. Absolutely. Moving on to our next caller from Bengaluru, NR Prasad. Sir, pose your question, please. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Sharadji, good evening to you. Good evening, Mr. Prasad. So there are 2 questions. Yeah. Kohli, what has happened was I booked a partial of my profit for 2024-25 on Thursday itself when the market was rallying. Okay. Now, this part of the profit which will come into 24-25. Mm-hmm. So I still come in the 7 lakh bracket. So this is my last year of this thing where it will with the 7 lakh. So I ventured, I calculated everything, and I booked my profit. Assuring you that when I visit Delhi, definitely I will carry laddu and I'll come to Market Mantra team. Wow. So here what happens is, my question is, if this is part of the 87A, yeah, only this year, when I find the next year, definitely it will be 15% more. Yeah. This is one point you have to confirm to me. My second question is, finally in this budget session, there were some 23,000 crore booster dose was given to the IT components. Rather electronic components, yeah, plus some 35 amendments were made on all the financial. Yeah. So here I just want to know probably in which sector can boost, assuming that I'm going to invest for the next 6 months. And in that one small sub-question, they were talking about Google tax. I really did not understand what is this Google tax.
Thank you. These are my two questions. questions. You made 3 questions, not 2. Anyway, your first question was about the Section 87A on the 2024. So yes, Mr. Prasad, there was some confusion with regard to claiming of capital gains last year in the old provisions. In fact, the matter went to High Court, and then Mumbai Commissioner of Income Tax decided that he left it, he allowed to some people because the utility of the income tax return was accepting, whereas in law it was not. So there was some confusion. So I think this will your profit for 2024 will sail through as far as Section 87 is concerned. Your second question was 23,500 crores allocated recently by the CCEA for electronic component manufacturing. It has been given by way of production-linked incentives and employment-linked incentives, and there's a capital subsidy also. So I think you can look at companies which is into electronic manufacturing, because those components are capacitors, PCBs. So the equipments which use capacitors, PCBs, etc., you can and fuses as well. So you can go for electronic component manufacturing companies, but for a long run, for that matter. And then I think he had a third question also. But because you said 2 questions, so probably I missed noting down your third question. So keep it for the next time, Mr. Prasad, because there are other people also waiting. A volley of listeners and waiting. by the way, laddus we only accept through radio, not physically. Yes. और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे है. शंकर, नमस्कार. बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नमस्ते कोलू जी, आप सबको ईद की बधाइयाँ. नमस्कार. सर, ये what are the key performing indicators, KPI, for any economy? I'm sure you would name in inflation is also an indicator. क्या हमारे देश में 22, 25, 30 राज्य हैं, तो इन राज्यों में जीएसटी तो एक हो गया, लेकिन फिर भी काफी चीजें जो नॉर्मल कंज्यूमेशन की हैं वो जीएसटी से बाहर हैं. इसकी वजह से दिल्ली में तेल का रेट, पेट्रोल का रेट बहुत कम है और हमारे भोपाल में बहुत ज्यादा है. तो हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स मध्य प्रदेश का तो दिल्ली से अलग होगा. क्या सरकार अलग अलग इन्फ्लेशन इंडेक्स देती है राज्यों के हिसाब से, या कम से कम शहरों के हिसाब से, या सबके लिए एक जैसे हॉस्पिटल का 50 मरीजों का एक ही टेम्परेचर एवरेज करके, तो टेम्परेचर एवरेज का कोई फायदा नहीं ना. तो इन्फ्लेशन इंडेक्स का अलग अलग दिया जाता है क्या? और दूसरा पहला सवाल था केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ठीक है, समझ आ गया. शंकर जी, देखिए, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीजें होती है. इन्फ्लेशन तो उसमें से एक होता है, आखिरी नंबर पे आता है. हम सबसे पहले जीडीपी होता है. उसके बाद आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स बना हुआ है, इसको हम पीएमआई कहते हैं, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स. वो बहुत ही, और अमेरिका में तो एक पीसीई होता है जिसको पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो बहुत सारे पैमाने होते हैं, इनको हम हिंदी में पैमाने कहते हैं. तो बहुत सारे पैमाने होते हैं, उसको मिला जुला के देखा जाता है. दूसरा, आपने इन्फ्लेशन का पूछा. ऐसा नहीं है कि राज्य वाइज इन्फ्लेशन राज्य निकालते हैं. हर राज्य की वित्त मंत्रालय होता है, तो हर राज्य अपना अपना इन्फ्लेशन जरूर निकालता है. वो हालांकि उसको पब्लिक डोमेन में जितना राष्ट्र की निकलती है उतना राज्यों की नहीं निकलती है पब्लिक डोमेन में. पर जब केंद्र निकालता है तो वो ओवरऑल कंट्री का निकालता है. और आपको बता दूं, इन्फ्लेशन 2 प्रकार की होती है. एक सीपीआई होती है, डब्ल्यूपीआई होती है. तो बास्केट ऑफ गुड्स पे निकाली जाती है. उसमें कुछ गुड्स होते हैं जिनको पैमाना बनाया जाता है और उसमें ओवरऑल एवरेज ली जाती है. ऐसा नहीं है कि सारे मरीजों का एक ही टेम्परेचर हो जाए. आपने उदाहरण थोड़ा सा उससे हटके दे दिया. पर इन्फ्लेशन बास्केट ऑफ गुड्स पे निकलती है और पूरे देश की निकाली जाती है. थोड़ा बहुत 19-20 वेरिएशन होता है. ये तो अब किसी के यहाँ अनाज बिल्कुल पड़ोस में उगता है, किसी का अनाज को 500 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है. आपने पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया, तो वैट कहीं तो रिफाइनरी के बगल में ही पेट्रोल स्टेशन है और कहीं कहीं रिफाइनरी से 1000 किलोमीटर दूर है. तो नेचुरली वो थोड़ा सा, प्लस राज्य टू राज्य वीएटी भी फर्क होता है. वो थोड़ा बहुत राज्यों का फर्क होता है. आपने ठीक कही ये बात. पर जब राष्ट्रीय इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो ओवरऑल बास्केट ऑफ गुड्स पे नेशनल लेवल पर निकाला जाता है. थोड़ा बहुत वेरिएशन ज्योग्राफी के हिसाब से हो सकता है. कोल्हापुर से रत्नाकर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. रत्नाकर जी, अपना सवाल पूछिए. हेलो, गुड इवनिंग सर. और शरद कोहली को नमस्कार. मेरा भी नमस्कार. मेरा सवाल है कि मैंने ई डिपॉजिट किया था स्टेट बैंक में जी, वो 2022 में किया था 3 साल के लिए जी, और वो अभी 2005 में ड्यू हो गया जी. और तभी उन्होंने अभी क्या किया, मुझे अकाउंट में क्रेडिट नहीं आया उसका जी, लेकिन वो डायरेक्ट उन्होंने रिन्यू कर दिया 2028 तक. अच्छा, ऐसे हालत में क्या कर सकते, ये मेरा सवाल है. क्योंकि ऐसी केस पहली हो गई थी, तभी मैंने बैंक में जाके इंक्वायरी की, तो वो बोले ई डिपॉजिट आपने किया है तो आप ई डिपॉजिट उधर से ही पता कर दो, ऑनलाइन पता कर दो. ये मेरा सवाल है. अच्छा, और दूसरा जी, ठीक है, वो जो रियलाइज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बुक, इसमें क्या फर्क आता है? मुझे ठीक से शब्द दूसरे वाले का तो समझ में नहीं आया. आपके पहले वाले का जवाब मैं दे देता हूँ रत्नाकर जी. उसमें ई डिपॉजिट आपने किया. ई डिपॉजिट तो एक
मेथड है डिपॉजिट करने का कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, पर हो सकता है गलती से आपसे ऑटो रिन्यूअल उसमें टिक हो गया होगा। तो क्योंकि ऑटो रिन्यूअल टिक हो गया है तो इसलिए उसने अपने आप ले लिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको बैंक को जाके फिजिकली जाके, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप बैंक से फिजिकली जाके ना करा पाएँ। अगर ई डिपॉजिट हो भी गया है तो वो तो एक माध्यम है डिपॉजिट करने का, तो आप बैंक के पास जाएँ। अगर आप नहीं चाहते हैं वो ऑटो रिन्यूअल हो तो आप बैंक को बोलिए कि वो आपसे फॉर्म साइन कराएंगे और आपके डिपॉजिट को प्री मैच्योर करके आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर देंगे। दूसरा आपने पूछा रियलाइज प्रॉफिट और प्रॉफिट बुक्ड का क्या मतलब है। प्रॉफिट बुक तो होता है जो भी आपको स्टॉक पे प्रॉफिट हो रहा है उसको आप बुक कर लेते हैं, और रियलाइज प्रॉफिट होता है जो रियलाइज होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। बेसिकली कोई दोनों में मुझे खास फर्क नजर आ नहीं रहा है, अनलेस कि आप कभी एग्जाम्पल दीजिएगा कि दोनों में आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। कॉन्सेप्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, टर्म अलग अलग यूज़ किया जाता है। जैसे प्याज को कहीं प्याज कहते हैं, कहीं पर कुछ और कहते हैं, तो समटाइम्स टर्म्स आर यूज डिफरेंटली, बट अनलेस यू गिव एन एग्जाम्पल टू व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। और हमारे दिल्ली से श्रोता केशव लाइन पे हैं, उनसे अनुरोध है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, तब तक हम लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर दिखाई दिया। इस सप्ताह अमेरिकी शुल्क लगाए जाने से पहले निवेशकों में सोने में निवेश की ओर आकर्षण दिखाई दिया। अमेरिकी शुल्क के चलते मंदी की आशंका का बाजार पर विपरीत असर पड़ा। अमेरिका ने 2 अप्रैल से आयातित ऑटोमोबाइल्स पर शुल्क और अन्य उत्पादों पर प्रतिकूल शुल्क लगाने की घोषणा की है। जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 4% तक गिर गया। विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टोयोटा का शेयर 3% गिरा। निसान और मजदा के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% गिरा। यूरोप के शेयर बाजारों में भी दिन के कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 1.3%, फ्रांस का कैक और जर्मनी का डेक्स लगभग 2% की कमी के साथ कारोबार कर रहे थे। पोर्स फॉक्सवैगन निर्माता कंपनियों के शेयरों में 3% की गिरावट दर्ज की गई। केशव, पोज योर क्वेश्चन नाउ प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मुझे आपसे एक सवाल लेनी है जी। सवाल ही समझ लीजिए उसको जी। क्योंकि आप आर्थिक सलाहकार हैं, इसलिए मैं आपसे मन में आया कि आपसे ही ली जाए जी। मेरे पास ब्रांच बैंक में 20 लाख रुपया जमा है जी। और मैं उस पैसे को बैंक से ही उधार लेना चाहता हूँ जी। क्योंकि क्या है, मन में तो ये बना रहेगा कि मुझे हर साल 1% एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा और मुझे वापसी देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास 20 लाख रुपए ऑलरेडी पहले बैंक में है जी। ये मुझे ठीक करना है कि इसके लिए आप कुछ बता पाएंगे? जी, इसको लोन अगेंस्ट डिपॉजिट्स कहते हैं और लोग अक्सर इसको करा करते हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं नजर आ रहा केशव ऐसा करने में। 20 लाख रुपए ले, आपके पैसे भी बने रहेंगे, लोन भी, जब मौका मिलेगा आप उसको वापस भी कर सकते हैं। जी। और चलते हैं सोने का हाल जान लेते हैं। घरेलू सराफा बाजार अवकाश के चलते बंद रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के मूल्य $3,128 प्रति औंस की नई ऊंचाइयों तक जा पहुंचे। सोने के मूल्यों में लगातार तेजी का आज तीसरा दिन था। Global crude oil prices jumped 1% today as US President Donald Trump threatened to impose secondary tariffs on buyers of Russian oil and warned Iran of possible military action if it did not agree to a deal over its nuclear program. The Brent crude oil futures rose 1% to $74.11 a barrel. US crude climbed 68 cents or 1% to $70.04 a barrel. Trump said on Sunday he was pissed off at Russian President Vladimir Putin and will impose 25% to 50% secondary tariffs on buyers of Russian oil if he feels Moscow is hindering his efforts to end the war in Ukraine. China and India are major buyers of Russian crude. Trump also threatened Iran on Sunday with bombing and secondary tariffs if Tehran did not come to an agreement with Washington over its nuclear program. शरद जी, कार्यक्रम समाप्ति से पहले आपसे सोने के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। सोने का तो अम्बरीश मैं शुरू से कह रहा हूं, जो लोग मेरे कार्यक्रम को और मेरे बोलने को सुन रहे हैं उनको आज बहुत बड़ा मुनाफा होगा। सोने के साथ लेके सो जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखे, बहुत ही सेफ हेवन एसेट है। और सोने को अशांति पसंद है जो कि इस समय भर भर के दुनिया में फैल रही है। तो मुझे लगता है सोने का भविष्य फिलहाल बहुत अच्छा है। सेंट्रल बैंक्स बहुत हाई लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके बढ़ने का। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर।
शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. My pleasure. Thank you. Before we wrap up, a reminder of the headlines. Domestic markets remain closed due to Eid ul-Fitr holiday, but stock markets in Asia and Europe plunge on tariff fears. Global crude oil prices jump 1% as Trump warns of tariffs on Russian oil buyers and bombing of Iran. And gold prices cross $3,100 per ounce, surging to another all-time high. That's all in today's edition of Market Mantra. Goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.